Good morning, students. Today we will start lesson number 3, Taro's Reward of Standard 6 English. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his parents everything they needed. So here Taro is a young woodcutter who lives with his old parents on a lonely hillside. Though he worked very hard chopping wood all day long in the forest, he earned very little money. He does not earn a lot from his work, so it upsets him not to be able to give his parents a better life. Now read second point. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly Taro's father said, "I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good." Explanation. One cold evening, as Taro and his parents were sitting in their hut, it started blowing cold winds. All people in the home felt cold due to wind passing from the cracks of the wooden house. Taro's father expressed his wish to have a cup of sake. Sake means it is a popular drink. वो एक popular drink है जो बहुत ही costly आता है और वो जापान का drink है. To keep him warm. Now let's read the third point. This made Taro sadder than ever, for the heartwarming drink called sake was very expensive. अब उसके फादर ने उसको विश किया था कि मुझे सैक पीना है, अ पॉपुलर जापानीज़ ड्रिंक. तो उस बात को लेके तारो बहुत ही सैडन था, बहुत ही दुखी था. वो सोच रहा था कि मैं इतना कॉस्टली ड्रिंक कैसे खरीदूंगा. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं ज़्यादा पैसे किस तरह से अर्न करूंगा. इस तरह से वो अपने आप से बात करने लगा. हाउ डू आई गेट अ लिटिल सैक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने पापा के लिए सैक कैसे लेके आऊँगा. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. Taro thought of working harder so that he could buy his father a little sack. Now read fourth point. Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. अब दूसरे दिन मॉर्निंग में क्या हुआ, तारो बहुत ही जल्दी उठ गया and went to the forest. और as usual वो forest की तरफ जाने लगा. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. वो वुड को चॉप कर रहा था, कट कर रहा था, चॉप कर रहा था, कट कर रहा था और सन आ गया था, बहुत धूप हो गई थी. एंड सून ही वॉज सो वार्म, और उसको थोड़ी गर्मी लगने लगी. तो उसने क्या किया, अपना जैकेट को रिमूव कर दिया. हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका जो माउथ था वो ड्राई होने लगा. एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और उसका जो फेस था वो पूरा गीला होने लगा. स्वेट मीन्स पसीने की वजह से उसका फेस पूरा गीला होने लगा. माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, और वो सोच रहा था कि मेरे पापा, अपने पापा के बारे में सोच रहा था. इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, वो बोल रहा था कि मेरे पापा अगर मेरे जैसे वार्म होते तो मीन्स वो इस तरह से वार्म होते तो उसको वो ड्रिंक नहीं चाहिए होता था. एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और वो सोच के वो एकदम फास्ट चॉप करने लगा. उसके पापा के बारे में सोच के वो और भी फास्ट चॉप करने लगा. थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन. अब वो क्या सोच रहा था कि मैं ज़्यादा चॉप करूँगा तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, और एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे तो मैं अपने पापा के लिए सेक बाय करूँगा. और वो सेक परचेज़ क्यों करना चाहता, क्योंकि उसके पापा के बोन्स को वार्मनेस चाहिए था, गर्मी चाहिए थी, इसकी वजह से वो सेक खरीदना था. नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ अवर चैप्टर एंड रीड द फिफ्थ पॉइंट. देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग. तारो क्या कर रहा था, जल्दी सुबह उठ के वुड कट कर रहा था और चॉप कर रहा था फॉरेस्ट के अंदर, और सडनली उसने क्या किया, जो वुड चॉपिंग करना स्टॉप कर दिया. व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड. Could it possibly be rushing water? Now what happened? While he was chopping wood, he suddenly heard the sound of rushing water. Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. तारो ने कभी भी ऐसा कोई आवाज़ या ऐसा कुछ उसको याद नहीं आ रहा था कि मैंने इसी कोई स्ट्रीम देखी है फॉरेस्ट के अंदर, कोई मैंने झरना देखा है. ही वॉज थर्स्टी, वो बहुत ही प्यासा था, उसको बहुत ही प्यास लगी थी.
The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. अब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था उसको बहुत गर्मी लग रही थी, पसीना आ रहा था और उसको बहुत प्यास भी लगी थी। तो जैसे ही उसने वाटर का आवाज़ सुना, पानी का आवाज़ सुना, तो वो उसने क्या किया, अपना एक्स फेंक दिया, नीचे छोड़ दिया और वहाँ पे भागा। कहाँ भागा, जहाँ से वो आवाज़ आ रहा था पानी का, वहाँ पे वो भागने लगा।